Assalamu alaikum students. This is your English class and we are going to start our novel The Merchant of Venice. We have done it up to page number 5. Middle of the page we have done. Now come to the second paragraph, page number 5. We have read the novel earlier. Ji, or what we have read, what happened in the story that Bassanio, he, he was coming to propose Portia, and for this he needed some money and he borrowed money from Antonio, and Antonio at the spot didn't have enough money to give to Bassanio. So he went to Shylock and borrowed some money to give Bassanio. And Bassanio, he gave the money on a condition saying that he had a funny idea if he couldn't repay his debt in time, then Antonio would let him cut a pound of flesh from any part of the body he chose. ऐसा ही था ना? Said no. Antonio agreed to the point because he had no fear. He knew very well that he had many ships, and if one of his ships is drowned in the sea or destructed in the storm, two of the ships will be destructed. Again, he will have if only one of his ship will reach there, he will have enough money to pay the debt of Shylock. So he laughed and signed the will. But Bassanio at the very point was suspicious about that. He was suspicious, उसे शक था किस पर? शाइलॉक के इंटेंशंस पर, उसके इरादे पे, कि कहीं ऐसा ना हो, उसकी नीयत में उसे लग रहा था कि उसकी नीयत में कुछ खराबी है, एंड ही वांटेड टू harm Antonio, and he told Antonio not to sign that will, but Antonio was sure of that. Antonio was sure that all his ships might never drown. So he signed the agreement and took money. Now Bassanio took the money and went to Belmont. Belmont, which is Belmont is the city of Venice. Belmont is the Italian city where Portia lived, and they lived, Antonio and Bassanio, they lived in the city of Venice, and Portia lived in Belmont. Now come to the story. Before Bassanio, many people had come to propose Portia, but they didn't dare to choose the box because her father had made a will. He had made a will for Portia to choose her husband, और वो will क्या थी? That the person who she should marry, the first person who would choose the right box containing the picture of Portia. And if he failed to do so, if he failed in his selection, then he had to make a promise that he will not marry any other woman. Though many persons came there, but when they came to know about the conditions of selection, they quit. They quitted, they left. उन्होंने left कर दिया, उन्होंने choice नहीं की. लेकिन एक शख्स ने जिसने selection की, first person who dared to choose was the Prince of Morocco. मोरक्को के प्रिंस ने सिलेक्शन की और उसने जो गोल्ड बॉक्स सेलेक्ट किया उसमें से क्या निकला? द पिक्चर ऑफ अ स्कल. और दूसरा शख्स जिसने सिलेक्शन करने की जरूरत की, सिलेक्शन करने की करेज दिखाई, ही वाज द प्रिंस ऑफ एरागन, अ वेरी प्राउड पर्सन. और उसने जब सिलेक्शन की तो उसने कौन सा बॉक्स चूज किया था? ही चोज द सिल्वर बॉक्स.
बिकॉज उस पे लिखा था, क्या लिखा था उस पे? द मैन हु चूजेस दिस बॉक्स विल गेट वट ही डिजर्व्स, कि जो इस बॉक्स को चूज करेगा उसे वो मिल जाएगा जो वो डिजर्व करता है। और उसने सोचा कि मैं इतना खूबसूरत, अमीर और एक प्रिंस हूँ और मैं ही पोर्शिया जैसी खूबसूरत लड़की को डिजर्व करता हूँ, लेकिन उसमें से क्या निकला? द पिक्चर ऑफ अ मैड फूल, एक पागल शख्स की तस्वीर निकली। बिकॉज वो खुद पागल था, मतलब वो एरागॉन का प्रिंस, वो बड़ा प्राउड शख्स था, वो किसी को खातिर में नहीं लाता था, और उसने जो चूज किया वो सही नहीं निकला। जी, नाउ कम टू द पॉइंट, वी आर कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ। देन पोर्शिया हर्ड, जी यहां से हमने छोड़ा था, अब यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। देन पोर्शिया हर्ड दैट बिसानियो हैड अराइव्ड, और फिर उसके कुछ अरसे बाद पोर्शिया ने सुना कि बिसानियो वहां पहुंचा उसको प्रपोज करने के लिए। ही हैड ब्रॉट विद हिम अ फ्रेंड कॉल्ड ग्रेटियानो। Gratiano was in love with Nerissa, Portia's servant, and hoped to persuade Nerissa to marry him, while Bassanio was asking Portia to be his wife. अब बेसानियो वहां पहुंच गया। बेसानियो अकेला नहीं गया, बल्कि अपने साथ अपने एक और दोस्त ग्रेटियानो को लेकर आया। और ग्रेटियानो क्यों उसके साथ आ गया? एक तो दोस्त था इसलिए आया, सेकेंडली ही हैड अ विश, उसकी विश थी, क्या विश थी? दैट ही वांटेड टू प्रपोज Nerissa, Portia's servant. Up they both of them have come with their own purpose. When Bassanio appeared, Portia welcomed him very kindly. और जब Bassanio वहां पहुंचा, Portia ने उसे बड़ा काइंडली वेलकम किया। शी वॉज प्लीज्ड ही हैड कम, और उसे खुशी हुई थी कि Bassanio आया था, एज शी वांटेड टू मैरी हिम, क्योंकि वो भी Bassanio को पसंद करती थी। शी वॉज वेरी वरिड, लेकिन वो बहुत परेशान थी दैट ही वुड चूज द रॉन्ग बॉक्स, कि अगर उसने रॉन्ग बॉक्स गलत बॉक्स चूज कर लिया एज द अदर्स हैड डन, तो फिर क्या होगा? पोर्शिया वांटेड टू हेल्प हिम टू फाइंड द राइट वन, और पोर्शिया चाह रही थी कि किसी तरह उसको कोई हिंट दे जिससे वो राइट बॉक्स चूज कर सके। बट शी न्यू शी मस्ट नॉट, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसे ऐसा नहीं करना, बिकॉज शी हैड टू बी ओबीडियंट टू हर फादर, उसने अपने फादर को डॉज नहीं करना था। शी हैड टू बी ऑनेस्ट, शी हैड टू बी obedient to her father. So she asked Bassanio to wait some time before he choose. और उसने Bassanio से कहा कि अभी सिलेक्शन के लिए मत जाए, सिलेक्शन वाले रूम में ना जाए, so that they could be together for a while, ताकि वो कुछ थोड़ा सा टाइम इकट्ठे स्पेंड कर सकें। She knew if he made a mistake and chose the wrong box, और उसे पता था कि अगर उसने गलती कर दी और गलत बॉक्स चूज किया तो क्या होगा? दे कुड नेवर बी मैरिड, उनकी शादी कभी नहीं हो सकेगी। एंड शी वुड नेवर सी हिम अगेन, और वो दोबारा Bassanio से नहीं मिल सकेगी। बट Bassanio वुड नॉट वेट, लेकिन Bassanio इंतजार नहीं करना चाह रहा था। He was anxious to know what he was anxious. Anxious mean बेचैन था। He was anxious, excited था, बेचैन था, to know what would happen, देखने के लिए कि क्या होता है। So he was shown the 3 boxes of gold, silver and lead, और इसलिए उसे बॉक्सेस वाले रूम में ले जाया गया। अब वो चूंकि विलिंग तो था पोर्शिया से मैरिज के लिए, लेकिन वो ज्यादा इंतजार भी नहीं करना चाहता था और वो ऑनेस्टली ही जाना चाहता था। अब जब वो बॉक्सेस वाले रूम में गया, उसने तीनों बॉक्सेस देखे। Bassanio thought for a long time. Bassanio काफी देर तक देखता रहा। Finally he decided, और finally आखिरकार he decided, उसने डिसाइड कर लिया। गोल्ड एंड सिल्वर लुक प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल, और उसने क्या सोचा, क्या डिसाइड किया कि गोल्ड और सिल्वर प्रीशियस मीन कीमती, कॉस्टली नजर आते हैं, एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत।
बट मैनी थिंग्स वर दैट वर ईवल, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो ईवल, जो बुरी थी और हैड नो वैल्यू, या जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू सस्ती सी हैं, कॉमन है, ऑर्डिनरी हैं, कुड बी मेड टू लुक प्रीशियस एंड ब्यूटीफुल। लेकिन कई ऐसी चीजें भी हैं जो इतनी प्रीशियस और वैल्यूएबल नहीं होती, इतनी खूबसूरत नहीं होती, लेकिन उनको प्लेटिंग करके, गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग करके उनको गोल्ड या सिल्वर की लुक दी जा सकती है। और उनके मुकाबले में लेड वॉज अ प्लेन ऑर्डिनरी मेटल। लेड उनके मुकाबले में एक सादा, प्लेन सादा, ऑर्डिनरी कॉमन आम, एक सादा और आम सी मेटल है। लेड आपको पता है ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की मेटल होती है। इट वॉज अ प्लेन ऑर्डिनरी मेटल, इट डिडंट प्रिटेंड टू बी बेटर देन इट वॉज, ही थॉट। और उसने सोचा कि ये जैसी है वैसी ही दिखती है, मतलब इसको पे प्लेटिंग करके इसको कोई और शेप तो दी, शक्ल तो दी जा सकती है, लेकिन इसी किसी और चीज को के ऊपर प्लेटिंग करके उसको लेड नहीं बनाया जाता, बिकॉज लेड तो आम है और सादा है, प्योर है। सो इट वॉज ऑनेस्ट, और उसने सोचा कि लेड ऑनेस्ट है। लेड क्या है? ऑनेस्ट मेटल है। ऑन द बॉक्स, अब लेड बॉक्स के ऊपर क्या वर्ड्स लिखे थे? द मैन हु चूजेस दिस बॉक्स विल बी टेकिंग अ ग्रेट चांस, कि जो इस बॉक्स को चूज करेगा ही विल बी टेकिंग अ ग्रेट चांस, वो एक रिस्क ले रहा है, वो एक चांस ले रहा है। ही विल बी टेकिंग अ ग्रेट चांस, ही विल बी टेकिंग अ ग्रेट रिस्क। अब वो रिस्क क्या हो सकता है? ही माइट लूज एवरीथिंग, उसकी हर चीज जा भी सकती है, वो हर चीज खो भी सकता है। दैट वॉज ऑनेस्ट टू, और ये ऑनेस्ट था, ये सही थी। थॉट बिसैनियो, बिसैनियो ने सोचा, बिसैनियो ने सोचा कि ये बात सही है। सो ही चोज द लेड बॉक्स, और उसलिए उसने लेड बॉक्स को चूज किया, बिकॉज उसने सोचा कि एक तो ये प्योर है, इनोसेंट है, और सेकेंडली कि वो भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहा था ये बॉक्स चूज करके। हो सकता है अगर वो पोर्शिया को विन कर जाता है तो पोर्शिया से मिल जाएगी, अदरवाइज वो सब कुछ, उसका जो पैसे जो उधार लेके आया सब कुछ जाया होकर सब कुछ खत्म भी हो सकता है। पोर्शिया वॉच्ड हिम मेक द राइट गैस, और पोर्शिया उसे देखती रही मेकिंग द राइट गैस, एंड विद डिलाइट, खुशी के साथ। डिलाइट, खुशी, जॉय। पोर्शिया दूसरे कमरे में थी लेकिन उसको देख रही थी कि उसने सही सिलेक्शन की। एंड व्हेन बिसानियो ओपन द बॉक्स एंड इनसाइड इट ही saw द पिक्चर ऑफ पोर्शिया, और उसमें से पोर्शिया की पिक्चर निकली। ही टर्न टू पोर्शिया, वो पोर्शिया की तरफ मुड़ा। and saw that she was as pleased and as happy as he was, और उसने देखा कि पोर्शिया भी उतनी ही खुश थी जितना कि वो खुद। यानी बोथ ऑफ देम वर विलिंग, और लकीली सैनियो ने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए सही बॉक्स का ही इंतखाब किया था। She immediately told him that she loved him very much. She then took a ring off her finger and gave it to Bassanio. और फिर उसने उसे बताया that she also loved him, and और साथ ही उसने अपनी फिंगर से एक रिंग उतारी और बिसानियो को दे दी। पोर्शिया said that he must never give the ring away, और पोर्शिया ने ये भी उसे कहा कि मतलब वो उसको चूंकि ये पहला गिफ्ट दे रही थी तो उसने कहा कि तुम इसको he must never गिव द रिंग अवे, कि ये रिंग वो कभी गुम ना करे, किसी को ना दे, अपने से दूर ना करे। इफ ही डिड, और अगर उसने ऐसा किया, देयर लव वुड एंड, तो उनकी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। बिसानियो एक्सेप्टेड द रिंग हैप्पीली, बिसानियो ने रिंग को खुशी खुशी लिया। एंड प्रॉमिस्ड नेवर टू गिव इट, लूज इट और गिव इट अवे, कि ना कभी इसको गुम करेगा ना किसी को देगा। दस बिसानियो एंड पोर्शिया एंड बिसानियो promised to be faithful to each other, और उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया टू बी फेथफुल टू ईच अदर। फेथफुल मीन वफादार रहने का, दोनों ने एक दूसरे से वफादार रहने का
प्रॉमिस किया। The trial of Antonio. Now its second part starts. The trial of Antonio. Gratiano and Narissa were in the room at the same time. वो भी उसी रूम में थे and had been watching what was happening. और वो भी ये सब देख रहे थे जो हो रहा था, what was happening, जो कुछ हो रहा था। Gratiano now came forward and said he hoped Portia and Bassanio would be happy. Gratiano आगे आया और कहा he hoped Portia and Bassanio would be happy and he said that he and Narissa would like to be married at the same time. और उसने कहा कि वो और Narissa भी उनके साथ ही शादी करना चाहते हैं, मतलब उसी टाइम पे इकट्ठे वो भी शादी करना चाहते। Portia and Bassanio were very pleased. वो दोनों भी बहुत खुश हुए and agreed at once और फौरन राजी हो गए। एग्री राजी होना, एट वंस फॉरन। बट देन लेकिन फिर समथिंग हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ विच वरिड देम ऑल अ ग्रेट डील, जिसने उन सब को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अ ग्रेट डील बहुत ज्यादा, वरिड परेशान किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो सब बहुत परेशान हो गए। A messenger arrived with a letter for Bassanio from his friend Antonio. एक मैसेंजर, एक पैगाम रसा, मैसेंजर मीन पैगाम रसा, पैगाम लेकर आया बेसानियो के लिए उसके दोस्त एंटोनियो का, who had borrowed money from Shylock for him, जिसने उसके लिए शाइलॉक से पैसे उधार लिए थे। Bassanio's face became pale as he read the letter. और जो ही बेसानियो ने वो खत पढ़ा, his face turned pale, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। It contained very bad news, इसमें बहुत बुरी खबर थी। Portia quickly asked what had happened, और पोर्शिया ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है। जाहिर है उसके चेहरा एकदम पीला पड़ गया, वो परेशान हो गया। तो पोर्शिया ने उससे इंक्वायर किया that what had happened, and now for the first time Bassanio told her about the money that Antonio had given him. और अब पहली बार बेसानियो ने उसे बताया उस रकम के बारे में, उस अमाउंट के बारे में जो एंटोनियो ने उसे उधार दी थी और उसकी खातिर शाइलॉक से किस कंडीशन पे ली थी। He told her too about Antonio's agreement with Shylock, और उसने उसे एंटोनियो के एग्रीमेंट के बारे में भी बताया। In the letter, Antonio said that his ships had not come back to port. अब खत में उसने क्या बताया था कि उसके शिप्स अभी तक पोर्ट पर, पोर्ट मीन बंदरगाह, हैड नॉट कम बैक, नहीं वापस आए थे बंदरगाह पर। दे हैड बीन wrecked at the sea, और ये कहा जा रहा था that they had been wrecked मीन destroyed at sea, तबाह हो गए थे समंदर में ही। and all the valuable goods on them had been lost, और तमाम कीमती सामान जो उन शिप्स पर लोडेड था वो भी समंदर में गुम हो गया। एंटोनियो हैड नो मनी टू पे बैक हिज डेब्ट, अब एंटोनियो के पास पैसे नहीं थे टू पे बैक हिज डेब्ट टू शाइलॉक, शाइलॉक को उसका कर्जा वापस करने के लिए। डेब्ट मीन कर्जा, पे बैक वापस करना, एंड द डेट फॉर हिम टू डू सो, और वापस अदा करने के लिए जो उसने टाइम दिया था उन्हें, had already passed, वो डेट भी गुजर चुकी थी, वो डेट पहले ही, had already passed, पहले ही गुजर चुकी थी। He would have to give Shylock a pound of his flesh, और अब उसे शाइलॉक को अपना 1 पाउंड फ्लैश देना था, यानी शाइलॉक को उसके जिस्म से 1 पाउंड फ्लैश काट सकता था। एंड आई एम नाउ सर्टन टू डाई, अब एंटोनियो ने उसे क्या लिख भेजा, आई एम नाउ सर्टन टू डाई, सर्टन मीन श्योर, यकीन, मुझे अब यकीन है अपनी मौत का, मुझे अपने मरने का यकीन है। एंड वॉन्ट टू सी यू, और मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। एंटोनियो रोड, एंटोनियो ने लिखा। The messenger told them that Shylock had
gone to the Duke of Venice, और मैसेंजर ने उन्हें बताया कि शाइलॉक वीनस के ड्यूक के पास गया था। ड्यूक इज द हेड ऑफ द स्टेट, जज के पास गया था ताकि वो उसे टू आस्क हिम टू डील विद द मैटर, कि इस मामले को डील करे। यानी वो चाहता था कि वो उनकी इजाजत से ये काम करे, सबके सामने एंटोनियो का फ्लैश ले, ताकि कल को कोई उसको ब्लेम भी ना कर सके कि उसने एंटोनियो का मर्डर कर दिया। Shylock wanted Antonio to pay him his pound of flesh immediately, फौरन, at once. Shylock चाहता था कि एंटोनियो फौरन अपना फ्लैश उसे लेने दे। एंड सो पुअर एंटोनियो वॉज नाउ इन प्रिजन, और अब इसीलिए अब पुअर एंटोनियो, बेचारा एंटोनियो वॉज इन प्रिजन, जेल, कैद। अब बेचारा एंटोनियो अब कैद में था, वेटिंग फॉर हिज ट्रायल, अपने ट्रायल के लिए। ट्रायल क्या होता है? जो केस की हेयरिंग होती है, किसी भी केस की, किसी भी मुकदमे की हेयरिंग होती है कोर्ट में, उसके इंतजार में वो प्रिजन में था, कैद में था। When Portia heard this terrible story, जब पोर्शिया ने ये खौफनाक कहानी सुनी, terrible, खौफनाक, she wanted to help him in any way she could. वो उसको she wanted to help him, वो उसकी मदद करना चाहती थी कि किसी भी तरीके से, in any way, किसी भी तरीके से she could, जिससे वो कर सकती। She offered to pay Shylock much more than the 3,000 ducats he was owed. और उसने ऑफर की, पेशकश की, शी ऑफर्ड, उसने पेशकश की, बिसानियो को पेशकश की कि वो, शी ऑफर्ड टू पे शाइलॉक, उसने बिसानियो को कहा कि तुम शाइलॉक को 3,000 डुकेट से कहीं ज्यादा की ऑफर करना, ही वॉज ओव, जो उसने देने थे, यानी जो उसका कर्जा था उससे कहीं ज्यादा की उसे ऑफर करना, ताकि वो एंटोनियो को छोड़ दे। She told Bassanio to go and help his friend as quickly as possible. और उसने बिसानियो से कहा कि उसे फौरन अपने दोस्त की मदद के लिए जाना चाहिए, as quickly as possible, जितनी जल्द मुमकिन हो सके। However, लेकिन ताहम, पोर्शिया insisted on one thing. पोर्शिया ने एक चीज पर इंसिस्ट किया, इसरार किया, इंसिस्टेड, इसरार किया, ऑन वन थिंग, एक चीज पर। और वो क्या चीज उसने कही? दे मस्ट बी मैरिड बिफोर बिसानियो लेफ्ट बेलमोंट, के बिसानियो के यहाँ से, बेलमोंट से जाने से पहले उनको शादी कर लेनी चाहिए। सो फोर ऑफ देम, पोर्शिया, बिसानियो, नेरेसा एंड ग्रिटेनो, went at once to the church, और वो सब चारों फॉरेन चर्च गए एंड वर मैरिड। अब वो चाहती थी, चूंकि सिलेक्शन हो चुकी है, बिसानियो ने राइट बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है, तो वापस आने में पता नहीं कितना टाइम लगे, तो इससे पहले कि कोई और शख्स ना आए वहां उसको प्रपोज करने के लिए, वो पहले ही बिसानियो से शादी कर ले। बिसानियो एंड now they got married in the church. Bassanio and Gratiano left their wives and went straight back to Venice. और अब वो लोग, बिसानियो और उसका दोस्त ग्रिटियानो, दे लेफ्ट देयर वाइव्स, उन्होंने अपनी बीवियों को वहीं छोड़ा और वापस वीनिस चले गए। वीनिस क्यों गए? टू हेल्प एंटोनियो। अब उसके जाने के बाद पोर्शिया थॉट अ ग्रेट डील अबाउट द प्रॉब्लम। पोर्शिया काफी देर तक इस मसले के बारे में सोचती रही। पोर्शिया भी बड़ी इंटेलिजेंट थी। शी वॉन्टेड टू सेव एंटोनियोज लाइफ, वो एंटोनियो की जिंदगी बचाना चाहती थी, बिकॉज ही हैड बीन सो जेनरस टू हर हस्बैंड, क्योंकि ही हैड बीन सो जेनरस, वो इतना सखी था। जेनरस मीन सखी, फयाज, हु स्पेंड लैविशली, या जो बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के दे देता है, लोगों की हेल्प करता है सेल्फलेसली, क्योंकि वो उसके हस्बैंड की हमेशा से मदद करता था और उसने अब भी उसकी बड़ी जेनरसली हेल्प की थी। Finally, she wrote a letter to a cousin of hers,
फिर फाइनली एट लास्ट आखिरकार उसने एक खत लिखा अपने एक कजन को, who was a well known and clever lawyer, जो एक well known मीन फेमस, मशहूर और क्लेवर लॉयर था. हिज नेम वॉज डॉक्टर बिलारियो, जिसका नाम डॉक्टर बिलारियो था. शी आस्क्ड हिम फॉर हिज एडवाइस, और उसने उससे मशवरा मांगा, नसीहत मांगी इस मामले में कि इस मैटर को किस तरह डील किया जाए. एंड शी ऑल्सो आस्क्ड हिम टू लेंड हर सम लॉयर क्लॉथ्स, और उसने उससे ये भी कहा कि वो उनको कुछ लॉयर क्लॉथ्स भिजवा दे. लॉयर क्लॉथ्स आपको पता है, जो लॉयर्स के एक स्पेशल गाउन, स्पेशल ड्रेस होता है, वो उसने मंगवाया. डॉक्टर बिलारियो इमीडिएटली सेंट हर द क्लॉथ्स, और डॉक्टर बिलारियो ने फौरन उसे वो लॉयर ड्रेस, लॉयर कोट भी भिजवा दिया. एंड टोल्ड हर हाउ एंटोनियो कुड बी डिफेंडेड एट हिज ट्रायल, और ये भी बताया, मशवरा भी दिया कि किस तरीके से पोर्शिया को उसे डिफेंड करना है. डिफेंड करना, बचाव करना है, बचाना है एंटोनियो को. डिफेंड, बचाओ, दिफा, एट हिज ट्रायल, उसके ट्रायल में. और साथ ही उसने उसे मशवरा भी दिया, तरीका भी बताया कि किस तरह से वो उसको डिफेंड करे, उस किन बातों के जरिए, किन पॉइंट्स के जरिए वो उसको बचा सकती है. We have done up to page number 9. From page 10 we will start inshallah on Monday. Now anyone, if you want to ask some questions, you can raise your hands, beta. Yes, Rohan, unmute yourself. Mohammad Rohan, beta, unmute yourself.